Hello students, welcome to Ignited Minds online lectures. Students, I am your teacher and my name is Khurram. Dear students, in the last lecture, I told you about the approaches or the structure of this UPSC examination or the concerned JKPSC examination like KAS. I told you about what is the structure of the examination, how are the questions framed for the preliminary examination, which is the first stage of the examination. Then we talked about how the mains is conducted, what is the structure of the mains, how many papers are there in the mains examination, and what is the marks structure, how the marks are basically given to the questions and to the GS papers, GS1, GS2, GS3, GS4, and what is the interview. And after discussing just in brief about the brief analysis that was basically about the structure of the examination, about the posts, about the IAS and all this. Now today, very important thing or very important basically concept I want to tell you or approach I want to discuss with you, that is regarding the newspaper that is called as Hindu. Dear students, this Hindu newspaper, this along with the NCERTs, they are considered as the Bible of UPSC examination. Like, there is no chance to ignore the newspaper anyhow. If we talk about the GS portion, as much important is the GS portion, as much importance is of the subject matter of all the components included in the whole of the GS papers. This newspaper is not just a newspaper, rather it's a knowledge paper. If we talk about the current affairs portion in the examinations, the weightage of the current portion of current affairs of the examination, by current affairs, we simply mean the important happenings around the globe which is of national or as well as international importance. उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके लिए एक अपना अप्रोच, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार करना, एक सोच में लाना बहुत 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 नेसेसरी है किसी भी एक सीरियस एस्पिरेंट को इस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए. क्योंकि वी कैन से gone are the days when basically the knowledge was limited or the static knowledge from the books would have basically sufficed the aspirant to qualify any of the examination. UPSC, IAS ki baat to chodo, if we even talk about these regional, local examinations like SSB or any other exam, they include current affairs also as their good weightage in the examination. तो UPSC में current affair और JKPSC या IAS के लिए, KS के लिए current affair की बहुत 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 importance है. अब करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, दो देयर आर मेनी पेपर्स और मेनी बुकलेट्स, मंथली बुकलेट्स लाइक विजन आईएएस या बहुत सारे इनसाइट्स की भी एक पैम्पलेट्स आते हैं, डेली करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर्स. यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, बट करंट अफेयर को समझना एक मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए बहुत 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 ज़रूरी है. करंट अफेयर को समझ के, चीज़ों को लेके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, एक ऐसा अप्रोच अपने अंदर लाना कि वो चीज़ों को लेके क्या सोचता है, उसका कंक्लूजन वो क्या निकालता है, उसको लेके वो क्या राय देता है, उसको लेके वो क्या समझता है, उसको लेके वो क्या एनालिसिस करता है, वो कैसे एसेस करता है चीज़ों को. ये एक बेसिकली न्यूज़पेपर को पढ़ के एक इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है. तभी हिंदू इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़पेपर. Any newspaper of we can say any national newspaper, be it Hindu or be it Indian Express, is equally important. दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. But at personal level or basically the students, they are mostly recommended to read the Hindu newspaper. अब ये Hindu newspaper को पढ़ना क्यों बहुत important है, हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना क्यों, we cannot इग्नोर दिस. इट्स अ प्रीरेक्विजिट कंडीशन कि भाई आपको क्वालिफाई करना अगर है बहुत अच्छे नंबर्स से, इवन अगर आपको क्वालिफाई करना है, हिंदू न्यूज़पेपर को इग्नोर करना ऑप्शन आपके पास नहीं है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर. ये 3 घंटे 4 घंटे न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमको न्यूज़पेपर 4 घंटे पे हमको इसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 3 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो इसको अप्रोच क्या है, कैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़े, क्या चीज़ें न्यूज़पेपर में हम छोड़े, कैसे हम इसको, इनसे हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. आर्टिकल एडिटोरियल्स, ओपिनियंस जो बहुत प्रोमिनेंट वी कैन से प्रोमिनेंट लोगों ने लिखी होती है, जो पर्टिकुलर उन फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनकी सोच को पढ़ना
और अपनी सोच एक बनाना, उन चीजों को लेके रोज रोज डेवलप करना, ये बेसिकली न्यूज़पेपर का मकसद है। अब न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, आज के इस वीडियो में हम यही चीज एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यूज़पेपर जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, देयर इज नो ऑप्शन, वी कैन नॉट से डोंट रीड न्यूज़पेपर, रादर वी हैव टू से हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, वी शुड लर्न हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इवन इफ अर्ली यू आर गिविंग जस्ट 1 hour, यू आर जस्ट कमेंसिंग द थिंग्स, रीडिंग द न्यूज़पेपर आपने अभी अभी शुरू किया है, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा ही स्टार्ट में दे रहे हो, यू विल बेसिकली यू विल एक्यूमुलेट दैट इंटरेस्ट डेली बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड एट द टाइम आपको 2 घंटे 2.5 घंटे जो एक जरूरी भी है इन्वेस्ट करना न्यूज़पेपर को लेके इस जर्नी में, एग्जामिनेशन की जर्नी में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप वो 2 घंटे दे भी पाओगे आराम से न्यूज़पेपर को, एंड विद द कीन इंटरेस्ट, यू लव द थिंग्स, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन इन स्टडीज, स्पेशली इन द यूपीएससी, यू कांट से दैट दिस इज द बर्डन. You just have to love the studies. You just have to love the content, the subject matter, the components, the newspaper, the articles, the ministry websites, जितनी भी important. You just have to basically love them. You just have to get interest इन स्टडिंग देम, क्योंकि जर्नी लंबी है। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है कि चलो क्वालिफाई करना है, कल एग्जाम है तो खत्म बात। नो, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। ये आपको डेवलप, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इवन इफ यू डोंट, गॉड फॉरबिड, इवन यू डोंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन आफ्टर 2 or 3 years, जस्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द लेबोरियस जर्नी, स्टिल यू विल सी द चेंजेस इन योर होल इंटेलेक्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में, आपकी सोच में, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी में, आपकी इंटेलेक्ट में, आपकी यू विल हैव दैट व्हाट वी कॉल एज दैट intellectual thought process, you will have that fast decision making process, you will have that leadership qualities, that management skills, everything you will possess in yourself, and that will make you a very good person even if you don't qualify the examination. After all, examination jo hai, it's not the end of the life, it's not everything about the life, it's just a part of a life for which you basically desire, and ye बहुत जरूरी भी है, बिकॉज इफ यू आर इन दिस वर्ल्ड, if you even you are living in this life, so you should have a dream of doing something big, but achieving that dream, अगर आपको ड्रीम नहीं भी मिलता है, if you don't conquer that dream, that doesn't make you stop. Even this journey, going for a process of 2-3 years, that will definitely make you such a person that everybody will be giving you such a keen respect and attention कि नहीं, इसमें वो qualities inherit हो गई है। और वो कैसे होती है? Just going through the whole of the journey. So coming back to the point, let's discuss now how to read the Hindu. All right, I have a Hindu newspaper here, so showing you whole newspaper here is quite pretty difficult. I cannot show you the whole of the newspaper, but here basically I'll tell you some certain points. आपको क्या पढ़ना है? If you see, this is the newspaper of 8th November. This newspaper is of 8th November, and this is a Hindu newspaper. Hindu, if you talk about J&K, Hindu यहाँ पे अगले दिन आता है। Suppose आज 9 नवंबर है, तो I have got 8th November newspaper, और ये 15-20 रुपए का न्यूज़पेपर यहाँ पे आपके पास पहुंच जाता है, and you have to do the registration for this, and the next day you will get the newspaper. All right. So now you have the newspaper of this day. How to approach this newspaper? Again, I am saying this is not a newspaper. This is a knowledge paper. So इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे समझेंगे? See the first page of the newspaper. It is basically about the news, whatever is going on in the whole of the India. There's something which is of national importance. तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, वो आपको अपने इंटेलेक्ट को पूछना पड़ेगा कि क्या ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या ये मेरे कंपोनेंट से रिलेटेड है। अगर बार बार एक हेडलाइन आ रही है तो एक बार उसको पढ़ना, उसका बैकग्राउंड को देखना बहुत जरूरी है। और हिंदू के साथ नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स डजंट मीन द होल ऑफ द कॉपी यू हैव टू मेक। नोट्स सिंपली मीन्स 10% रेशियो आउट ऑफ 100। मतलब अगर 100 लाइनों का, 100 शब्दों का कोई पैराग्राफ है, 10 शब्द में आपको उसको निचोड़ के आपके सामने रखना है, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ एट द एंड ऑफ द examination or at the end of the day. So the news was here basically, fisherman killed in the park firing off Gujarat. अब ये कुछ खास न्यूज नहीं है, fisherman was killed. If you want to go at the background, why fisherman, why is their issue around these coastal regions, क्या इशू हो रही है, इंडिया की सॉवरेनिटी को लेके क्या चर्चा है, सिक्योरिटी को क्या लेके इशू है, fisherman, why fisherman, there is always an issue around these coastal areas regarding the fishermen of other countries. तो आप इसको देखोगे, this according, वहाँ पे आपको फिर exclusive economic zones and bordering coastal regions, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, रिसोर्सेज, ये सब चीजें पढ़ने समझने को मिल सकते हैं। बट इन अ नटशेल यू जस्ट कैन गो थ्रू द न्यूज एंड सी व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन। अगर ये न्यूज 3-4 बार आती है, रोज रोज में कुछ अपडेट आता है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस बैकग्राउंड। अदरवाइज दिस न्यूज सिंपली टॉक्स अबाउट फिशर मछुआरे जो है उनको मारा गया, किल्ड इन पार्क फायरिंग ऑफ द गुजरात। ठीक है, ऑलराइट। सो फिशरमैन किल्ड इन पार्क फायरिंग ऑफ गुजरात। नाउ देयर इज अनदर न्यूज।
बगल में ही एक और न्यूज है, बीजेपी विल विन पीपल्स ट्रस्ट सेज पीएम। लेट्स सी। Okay, this is not that important news. अब ये क्यों न्यूज में है? Because there has been the by-polls, and by-polls are simply those polls जहाँ पे बीच में ही इलेक्शन होता है, either the member of the legislative assembly dies or he is expelled from the party or any other reason happens, and the election has to take place in the mid of the term. So उसको by-polls बोलते हैं। अभी यहाँ पता चला, यूँ हमने देखा गया कि by-polls happened in the 17 states और 17 constituent assemblies, और वहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली बीजेपी ने 4, 5, 6, 7, 8 जगह पे सीट्स हार दी। और बीजेपी इज सेइंग दैट कि हम फिर से यकीन लोगों में फिर से अपना यकीन जीतेंगे, एंड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू। रेन बैटर्स चेन्नई, रेन बैटर्स चेन्नई, सेवरल सिटीज फ्लडेड। अब ये चेन्नई में सैलाब आ रहा है इस टाइम नवंबर में। वी नो दैट this page basically is not that important until unless the news comes again and again. अब ये हेडलाइन चल रहा है, चेन्नई में सैलाब आ रहा है। चेन्नई में 2015 में सैलाब आ गया। चेन्नई इज अ सिटी बेसिकली विच इज फेसिंग द ह्यूज इंपैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। चेन्नई में 2015 में एक बहुत डिजास्टरस सैलाब आ गया था, एंड 2019 में चेन्नई में देयर वाज अ ड्राउट। सो दिस इनंडेशन ऑफ द सिटी एंड द ड्राइनेस ऑफ द सिटी, व्हाट व्हाई चेन्नई एंक्रोचमेंट क्या है, चेन्नई का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा सिटी में है, चेन्नई क्यों फेस कर रही है दिस हैजर्डियस इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, एंड व्हाट द anthropogenic activities are the reasons. So you have to go through this. You can check out this if you are interested in the floods and the climate. You should be interested anyhow, but if you don't want to go through the news, it's okay, but once read what is in Chennai. Now again the disaster, if अगर बहुत ज़्यादा disaster हो रही है तो चेन्नई की न्यूज़ बहुत चर्चे में आएगी, तो आपको चेन्नई की न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, चेन्नई में बैकग्राउंड क्या है, and this is basically the climate news. Alright, so let's move to the, now ये पहला पेज है, there is nothing such more important you can basically go through. Do such news, such paper isn't, such page, front page isn't that very important until and unless the news is again striking on the same page. So you have to go through the background, क्या हो रहा है इस चर्चे में, क्या हो रहा है. Now let's change the page and go to the next page. So, here was the next page, जो इसका बैक वाला पेज था, ये इसके बैक वाले पेज है, अगला वाला जो पीछे वाला पेज था. What does it says? This page basically talks about the showcase, so it's not that important. Sometimes कभी-कभी ये जो वाला पेज है, this page, it talks about for a taste of Chhattisgarh, what is happening and all that things. You don't have to go through the news. This is basically sometimes पे अगर आप पढ़ोगे, if you have a lot of time, basically again I am telling you, if you have to go through the newspaper, you just have to relate it with your subject matter. क्या ये मेरे कंसेप्ट में है, क्या ये मेरे सिलेबस में है, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, क्या ये नेशनली डिटरमाइन करता है कुछ कंट्री के लिए, क्या इसकी कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या पीछे, तब जाके न्यूज बनती है. अदरवाइज अगर आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है, आपका इंटरेस्ट है आर्ट एंड कल्चर में, चीजों में, म्यूजिक में, ट्रेडिशन में, तो कभी कभी ये वाली न्यूज आप देख सकते हो. अदरवाइज दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हाँ, कभी कभी किसी ट्राइब का नाम आ जाता है, कोई आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन होती है किसी ट्राइब के साथ, कोई चीज होता है इसमें, लाइक द क्यूजाइन, द फूड. समटाइम्स दे कैन आस्क अ फैक्चुअल क्वेश्चन लाइक दिस डांस बिलोंग्स टू दिस स्टेट, this culture belongs to particular region and all that, but not that important. Then there's an advertisement education plus, don't go through that, you don't have to go through that. अगर इसी पेज को हम टर्न करें, let's turn this page, page number 3, page number 3, and this page number 3 is always about the states. State news होती है इस page number 3 पे. So how will you read this news? Major जो ये वाला पेज है, just don't go through this page. एक वाले पेज पे तो एडवर्टाइज ही, आगे नीचे वाले हिस्से पे, ऊपर वाले पेज पे there is a news regarding the पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट्स. क्या कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अफेयर स्टेट में हो रहा है, क्या कोई न्यूज बार बार आ रही है, लाइक फंड्स फॉर द फायर ऑडिट्स इन महाराष्ट्र हॉस्पिटल्स. नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज, वी डोंट हैव टू गो. नो प्लान टू लीव बीजेपी वॉलंटरीली, किसने बोला? तथागाटा ने. सो हम क्या करें? ठीक है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू. नो प्लान्स टू लीव, आप रहो, आप ना रहो, देश का भला कर दो, दैट्स इट. दिस इज पेपर 4. पेपर 4 इज अबाउट द स्टेट्स अगेन. तो रिफ्रेन फ्रॉम रिलीजियस एक्टिविटीज ऑन रोड्स. ठीक है, फिर से against the democracy or whatever, I don't, this is your opinion, generate your opinion. Maybe they can ask you what do you think about this protests or the religious what we call as religious demonstrations or whatever they want. Is it एक opinion आप generate कर सकते हो इन चीज़ों को पढ़ के, but this is not that important news, this is not though related to your syllabus, so you can leave that. So this whole paper, this whole page is again not that of utter importance. You can skip this page very well and with the full confidence until unless something very important comes which your brain tells नहीं ये पढ़ना है, syllabus में है, component में है, news है, national importance है. Rest you can leave. Okay. This is the page number 5 of the national newspaper of the India. Students, what about the news?
advertisement, manifestos, whatever. Another major relief to the people of Punjab. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi ne bola to slash the price of petrol and subsidies and all this. They are basically advertising what have they done and what they are doing. To this just a manifesto. You don't have to read this. Okay, fine. No, don't need to. Most important page is this from the whole of the Hindu newspaper. एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज, आर्टिकल पेज. ये पेज आमतौर पे आपको 6 या 7 नंबर पे मिलता है, कभी कभी 9 या 10 नंबर पे मिलता है. सो अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नाउ व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड दिस पेज इफ यू टॉक अबाउट द एडिटोरियल पेज. ये एक एडिटोरियल पेज है. एडिटोरियल यहां से बेसिकली छोटे से 2 एडिटोरियल नीचे नीचे होते हैं, ऊपर और नीचे एक एक. एंड बेसिकली ये एक ओपिनियन होता है किसी भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का. ही कैन बी एनीथिंग बिलोंगिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट. सिक्योरिटी एडवाइजर रहा होगा, कोई साइबर सिक्योरिटी वाला, कोई एक्सपर्ट होगा, कोई इंटेलेक्ट होगा, कोई गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, कोई पॉलिटी, कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी, कोई विसल ब्लोअर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उसने कुछ अपना एक तखय्युल आपके सामने रखा है और आपको उसको अपने दिमाग में रखना है और आपको अपना ओपिनियन जनरेट करना है. और मेंस में जब आंसर पूछा जाएगा आप उसको अपना यूज कर सकते हो. सो ये जखीरा है, ये खजाना है बेसिकली. इसको कैसे पढ़ा जाए? सपोज दिस यू हैव टू, अगर आप पूरे अखबार में नोट नहीं बना रहे हो तो इसका एक ओपिनियन जनरेट करके 2-3 लाइनों का लिखा करो आप अपने पेज पे ओपिनियन. ठीक है. सो दिस साइड सेज हियर द फ्यूल price optics levies must be cut further to offset the effect of the continuing surge in global oil पॉलिटिक्स. अब ये बात हो रही है, अब जो एक्सेस ड्यूटी तेल पे काटा गया, तेल को थोड़ा सस्ता किया गया, तो ये ऑथर जो है ये हमको बेसिकली वही बात कह रहा है, थोड़ा और तेल को कम करो. और उसके पीछे वो क्यों कह रहा है, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कर सकती है. आप इस आर्टिकल को पढ़ के एक अपना एक ओपिनियन जनरेट कर सकते हो. और जब इस आर्टिकल को, छोटे आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली समझना, लिखने वाली बात क्या है, रीजंस, मेन क्रक्स क्या है, रीजंस लिखो 2-3 लाइनें. ऑथर क्या कह रहा है बेसिकली 2-3 लाइनें, और कंक्लूजन वो क्या दे रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस यू कैन पेन डाउन इन योर मेंस, इन योर आंसर. और फैक्ट भी कभी कभी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट वाला जो प्रीलिम्स या कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. सो फ्यूल प्राइसेस ऑप्टिक्स क्या है? द सेंट्रल फाइनली डिसाइडेड लास्ट वीक टू रेलेंट एंड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स बाय कटिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 5 and 10 रुपीज अ लीटर रेस्पेक्टिवली. तो उसके बाद ये कहानी पूरी कहता है एंड तक कि क्या कंक्लूजन है, क्या स्टेट्स कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी कौन स्टेट कितना काट सकती है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है. ये सब चीजें आपको यहां पे जब पढ़ोगे तो आप यू विल बी कंपेल्ड टू राइट व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी, व्हाट इज बेसिकली फ्यूल प्राइस को लेके क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया में क्रूड ऑयल कितने को मिल रहा है एंड हम क्यों बेच रहे इतना महंगा. यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड जनरेट एन ओपिनियन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस. अ न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. ये क्या है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन से होते हैं, ये बात कर रहा है बेसिकली ये वाला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट the Supreme Court judgment alters the terrible legal landscape that has seen the blatant misuse of the UAPA. अब ये UAPA क्या है? बेसिकली दिस इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. और इसमें क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती है विच गवर्नमेंट कंसिडर्स अनलॉफुल. गवर्नमेंट ने कौन से प्रोविजंस रखे कि अगर आप ये चीज कर रहे हो तो यू विल बी बेसिकली you will be accused of doing the terror activities or unlawful activities which are against the sovereignty and the security of the country. तो इसको लेके एक आर्टिकल, एक ऑथर ने एक पूरा बेसिकली he has written a good amount of we can say this opinion, good amount of thought process he has basically reflected in this page. तो आप इसको पढ़ के जान सकते हो यूएपी क्या होता है. और ये जो आर्टिकल है, you have to relate कौन से मेंस में आ सकता है. दिस इज बेसिकली द पॉलिटी पोर्शन, दिस इज बेसिकली गवर्नेंस रिलेटेड इशू एंड यू कैन रीड व्हाट इट टॉक्स अबाउट. पॉलिटी GS2 का ये पोर्शन आपका बन जाता है. GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ सकते हो. इस आर्टिकल को पढ़ लो, क्या है यूएपी, ऑथर ने क्या बोला है, रीजंस क्या है इसके पीछे और कंक्लूजन क्या है. दैट्स इट. जस्ट 4 or 5 लाइन्स पेन डाउन ऑन योर own. And main important thing, once you read the newspaper daily, especially the article and editorial portion, you will be having a huge amount of vocabulary richness now. Once you will get the few words here which you don't know the meaning. If you are having the interest and you are a serious aspirant, you will be forced to basically underline that line and underline that word and pen down the meaning over there by the Google dictionary or whatever you have. So आपकी vocabulary भी कितनी rich हो जाएगी at the end of the journey, you will yourself come to know. ठीक है. So this is how you have to relate. कौन सा आर्टिकल किस मेंस पोर्शन के साथ रिलेट हो रहा है और कौन सा आर्टिकल बेसिकली क्या कह रहा है. 2-3 लाइनें उसके बारे में लिखनी है. यूएपी के बारे में बात हो रहा है, ऑथर क्या कह रहा है, क्या
प्रोसेस चल रहा है, बेसिकली क्या जूरिस्प्रूडेंस है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, यूएपीए क्या कहता है, व्हाट इज द दिस अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है। इसके नीचे ही एक आर्टिकल है, ऑकस कुड रॉक चाइनाज बोट इन द इंडो पैसिफिक। तो ये बेसिकली ऑकस क्या था, एक इट वाज अ वी कैन से इट वाज अ ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बेसिकली जो यूएस ने शुरू की थी, एंड इट वाज फॉर इंडो पैसिफिक रीजन स्पेशली बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। अभी रिसेंटली हुआ था इनका दिस कोलैबोरेशन, एंड मेजर हाईलाइट ऑफ दिस वाज बेसिकली फॉर शेयरिंग, मेजर हाईलाइट क्या था, फॉर शेयरिंग द यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी विद ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो क्या ऑकस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ग्लोबल क्या सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर हो सकता है, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर में आपका ये आर्टिकल आ जाएगा, आप इसको GS2 में लिंक कर सकते हो। इसके पीछे क्या रीजंस है, ऑकस क्यों लाया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टूड इन दिस। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, डोंट रीड whole of the newspaper, just main focus on this page, main focus on those blank highlights of the newspaper 1, page 1. You have to understand if again they are coming in the news again and again. All right, then you have the रेबल्स एंड द रूलर्स। एक छोटा सा आर्टिकल यहां पे दिया है, एक छोटा सा रेबल्स एंड द रूलर्स क्या है, रेबल्स कौन होते हैं, हु आर द रेबल्स, बेसिकली जो तंग आ गए होते एक सेटअप से, एक प्रोसेस से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एंड अल्टीमेटली दे टर्न इनटू वी कैन से दे गो अगेंस्ट द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे टेक द स्टैंड अगेंस्ट दैट, और उनको हम रेबिलियंस बोलते हैं। सो रेबल्स क्या है और रूलर्स के बीच में इथोपिया की बात हो रही है। इथोपिया में इस टाइम वॉर चल रहा है, इथोपिया कहां पे मौजूद है, इसकी ज्योग्राफी थोड़ी समझनी पड़ेगी। अफ्रीका का एक कोना है जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय द रिफ्ट वैली, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, इथोपिया है, वी हैव द जिबोटिया, वी हैव द सोमालिया, वी हैव द एरिट्रिया। तो इथोपिया में क्या इशू चल रहा है, बेसिकली इथोपिया में गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच, गवर्नमेंट्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, एंड वी कैन से द फोर्सेस और द मिलिटेंट ग्रुप्स ओवर दे आर हैविंग दिस फाइट विद द गवर्नमेंट, एंड रीजंस क्या है ये सब इसमें जानने की जरूरी है। तो इथियोपियन गवर्नमेंट एंड द मिलिटेंट्स मस्ट एंड द फाइटिंग एट द बिगिन टॉकिंग, उनको अब ये बहसबादी, ये जंगबादी खत्म करनी चाहिए और आपस में मुलाकात बात करनी चाहिए, ताकि जो लोगों के लिए बहबूदी, फलाह बहबूदी, बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये क्या इसके पीछे, ये शुड नो दीज फैक्ट्स, और इस पे इंडिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंडियन डिप्लोमेसी पे, इंडियन रिसोर्सेज पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ सकता है, पड़ रहा है, ये सब चीजें हमको इन आर्टिकल को पढ़ने से पता चलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इफ एनी आर्टिकल इज कमिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 5, 10, 15, 20 दिन वहीं आ रहा है, तो डोंट नीड, जस्ट आर्टिकल नया आ गया, एक दो बार आ गया, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका क्रक्स लिखो, कंक्लूजन लिखो, रीजंस लिखो, फिनिश इट, दैट्स इट, नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन, ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद इफ यू विल टर्न दिस पेज, इफ यू विल टर्न दिस पेज, ये वाला पीछे एक और आर्टिकल था, बेसिकली दिस ओपिनियन आर्टिकल, इसमें भी आपको सबसे पहले हर कोई, देयर इज नो नीड टू रीड द एवरी आर्टिकल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द आर्टिकल व्हिच इज ऑफ इंपॉर्टेंस रिलेटेड विद योर मेन सब्जेक्ट। अगर ये ओपिनियन देखोगे, द लॉन्ग रोड टू टाइमली नरेगा पेमेंट्स, बेसिकली नरेगा क्या है, ये 3-4 बात बेसिकली हिंदू न्यूज़पेपर पे 4-5 दिन पहले न्यूज आई थी कि नरेगा जो है, मनरेगा जो है, बेसिकली वो क्या है, मनरेगा सिंपली एक वी कैन से एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट करते हैं, गांव को डेवलप करना है, और डेवलप करने के साथ हम लोगों के गांव के लोगों को ही डेवलपमेंट के लिए उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनको रोजगार देंगे 100 दिन का, ठीक है। सो डेवलपमेंट भी होगी, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सिंपल यही बात है। तो मनरेगा को लेके बेसिकली कितने फंड्स थे, क्या थे, एक आर्टिकल आया था हिंदू पे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कि मनरेगा में फंड्स जो है खत्म हो चुके हैं। तो अगले दिन फिर से जब ये नेशनल न्यूज बन गई, क्यों फंड्स खत्म हो गए, क्या हो गए, तो पॉलिटिक्स सब इन्वॉल्व हो गए। अगले दिन मनरेगा ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वी विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फंड्स इन मनरेगा, वी हैव द फंड्स इन मनरेगा। उसके बाद ये एक न्यूज बनते बनते उस पर फिर अगले दिन एक और न्यूज आएगी थी कि कास्ट डिस्पैरिटी हो रही है, कास्ट प्रॉब्लम हो रही है इस मनरेगा को लेके। व्हेन यू प्रोवाइड जॉब्स टू द रूरल पीपल, यू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलोंग टू द पर्टिकुलर हायर कास्ट, दे हैव गॉट द मनी, दे हैव गॉट द पेमेंट्स, एंड सम पीपल आर देयर व्हिच आर डिवाइड ऑफ द पेमेंट्स सिंस लास्ट 6 months डिस्पाइट द डूइंग द वर्क। सो मनरेगा एक फिर बहुत बड़ा इशू बन गया। तो मनरेगा अब कैसे आपको पढ़ना है इस मनरेगा को, दिस इज नेशनल न्यूज नाउ। मनरेगा को जब आप रोज रोज पढ़ोगे, अब देखोगे ये न्यूज आ रही है, तो मनरेगा भाई क्या
है, आप पीछे न्यूज़ बैकग्राउंड देखोगे, कब लागू गया, क्यों लागू गया, इससे क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, एक दो पेज इसमें लिखोगे एंड फिनिश इट। जब तक इसमें कोई बहुत बड़ा करंट अफेयर ऐड नहीं होता तो वहां पर उसको ऐड करके ऊपर लिखा करो कि दिस इज अबाउट द मनरेगा। अब आप अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हो मनरेगा को लेके। आपको पूछा जा सकता है कि अगर मनरेगा में पैसा खत्म हुआ, क्या दे कैन आस्क इज इट अ गुड, पैसा खत्म हुआ तो मतलब डेवलपमेंट हो गई होगी ना, चीजें बन गई होगी ना, क्या? देन यू हैव टू जनरेट योर पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन। दैट इज व्हाट एन एग्जामिनर और यूपीएससी बेसिकली वांट्स फ्रॉम यू। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको क्या समझते हो इस चीज से, और इंटरव्यू में वो आपको पूछ सकते हो और वहां पे क्या आप बता सकते हो आपकी सोच के हिसाब से जो आपने समझा होगा चीजों को लेके। सो दिस वाज मनरेगा न्यूज। अगेन यहां पे आ गया द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट्स। अब ये क्या है? देयर रिमेन डिलेज इन द स्टेज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स वेजेस टू द वर्कर्स अकाउंट्स। यही वही वाली न्यूज है कि देरी होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देरी में वेजर्स के अकाउंट्स में देरी कर रही है। ठीक है, सो दैट वाज all about this newspaper। इसमें and there's again strengthening the vaccine trust। न्यूज़पेपर वही वैक्सीन को लेके इश्यूज जो चल रहे हैं बाकी कंट्रीज में एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड सेम वैक्सीन न्यूज, सो डू नीड टू गो अबाउट दिस। सो मेजर इंपॉर्टेंट जो था हमारे न्यूज़पेपर में, दैट वाज अबाउट दिस आर्टिकल। ये कैसे? दिस न्यूज This news talks about ban on Italian for Augusta scam lifted। अब ये अगस्टा स्कैम आ गई न्यूज में। अब आपको अंडरलाइन करके देखना पड़ेगा क्या है और थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट द वी कैन से डिसीजन दैट फॉलोज मोदीज विजिट टू रोम फॉर G20 मीट सिग्नल्स रीलॉन्च ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, इटली में और मोदी ने के बीच में क्या बेसिकली समझौता हुआ, रोम डिक्लेरेशन क्या था, G20 क्या हुआ, ये सब वही न्यूज, इसमें कुछ एडिशंस हो रहे हैं। यू हैव टू रीड दिस again becomes the important news। so total मिला के if you turn the page then you have the 10th page के बाद you have this was in the news। एक नया वेरिएंट आ गया है कोविड वैक्सीन का। सो दिस इज अ करंट अफेयर। दिस कैन दे कैन आस्क यू which of the following is a new variant और what is this related to? A.Y.4.2 वेरिएंट नॉट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये वेरिएंट किसका है? इसका है, कोरोना वायरस का वैक्सीन है ये, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ये। सो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस वेरिएंट? क्या एक खतरे से भर के है, क्या हमको डरना चाहिए? सो इसके बारे में पता होना चाहिए वेरिएंट क्या है। दे कैन आस्क यू अबाउट दिस इन द फैक्ट, इन द प्रिलिमिनरी, इन द मेंस दे कैन नॉट आस्क, दो दे कैन आस्क एनी हाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वेरिएंट्स ऑफ दिस मैनिपुलेशन ऑफ दिस वायरस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो यू शुड नो अबाउट दिस। सो this is the major important paper। again I am telling you, the article and the newspaper is the major article and the editorial is the major newspaper। ठीक है, so then you have the world news, you can read it if you have a lot of time। world news को पढ़ो, देखो क्या दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में हो रही है, क्या चर्चे दुनिया में हो रहे हैं। इराकी पीएम सर्वाइव्स असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये तो न्यूज़ लग रही है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे, क्यों। विद ग्रिप ऑन प्रेजेंट जी आइज कंट्रोल ओवर पार्टीज पास्ट फ्यूचर। नहीं आया था जी न G20 में, न COP26 में, तो क्यों नहीं आया था? इसकी क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या इशू चल रहे हैं? चाइना में क्या इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, डिबैकल हो रही है, तो वो एवरग्रांडे को लेकर इशू के लेकर परेशान है क्या? तो एक बार अपना ओपिनियन जनरेट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा ये न्यूज़ क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर विच आई टोल्ड यू हाउ यू हैव एट द एंड यू हैव द स्पोर्ट्स न्यूज़। कभी कभी पूछा जाता है स्पोर्ट्स के रिलेटेड कौन सा पर्सन, कौन इंपॉर्टेंट आदमी है, उसने कौन सा अवार्ड लिया, क्या वो कर रहा है, किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। So in a nutshell, this was best I could explain you how to read the newspaper in the span of 2 hours or the 2.5 hours which you have to definitely give to the reading newspaper initially। ठीक है, उसके बाद you will basically get this time, ये जो वक्त थोड़ा कम लग जाएगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। सो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन नॉट टू रीड द न्यूज़पेपर। अपना ओपिनियन जनरेट करोगे, अपना ख्याल लाओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना अप्रोच से चीजों को देखोगे, एक आपका इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा, एक नॉलेज गिव्स यू करेज, कॉन्फिडेंस। वंस यू हैव द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज, यू कैन विदस्टैंड एंड यू कैन स्टैंड आउट ऑफ ऑल द पीपल एंड यू कैन से yes I know about this, yes this is my opinion, yes they should do this, they are doing this, the conclusion is this, the structure is this, the government should do this, and we have the fun. You can have your opinion, and that's what opinion and qualities and knowledge makes you stand as a leader, as a administrator, and that's what makes you an IAS officer or the KS officer. So students, thank you. In the next video I'll be telling you about how to read the NCERT books, which are the basics for any of the fresher who doesn't know an iota of this preparation. उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को समझना है कि कैसे पढ़े, उतना इंपॉर्टेंट उसके लिए है कि NCERT
एनसीईआरटीज को पढ़ना और एनसीईआरटीज को कैसे पढ़े. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू.